इवन इनफैक्ट जो हमारे को पैन इंडिया से जो कस्टमर्स हमारे को ऑर्डर भेजते हैं, तो वो हमें मैसेजेस करके बोलते हैं मजा आ गया आपके यहाँ से हमें टॉयज मंगा करके। आप हमारी रील से भी जाके देखोगे, इंस्टा पे भी जाके देखोगे, ऑल BIS। सो क्वालिटी इज द फर्स्ट थिंग विच वी मेक श्योर कि कोई भी टॉय अगर टॉय फूड पे सेल हो रहा है तो उसका क्वालिटी एकदम अमेजिंग होना चाहिए, कि बच्चों के साथ बैठें, टाइम स्पेंड करें, बच्चों को गेम्स खिलाएं, बोर्ड गेम्स खिलाएं, बच्चों को मोबाइल से दूर करें। सिंपल टॉय फूड पे आओ, यू नेम द ब्रांड जो भी आपके मन में हो, जो बिकॉज सब लोग आजकल इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, सबको होता है कि हमें अपने बेबी के लिए लेना है, अपने बेबी के लिए ब्रांड लेना है, ये स्टॉलर लेना है, तो यू नेम इट एंड वी हैव इट। Welcome to another super exciting episode of the Edge Show. In this episode, we have an entrepreneur who's into the business of toys, specifically products for kids. He's the owner of Toy Fort. That is one of the best toy stores in India, and that's a business with a mission, with a tagline where every smile counts. Toy Fort operates on both offline and online mediums. Toy Fort operates from Delhi and it further operates online, and the web address is toyfort.in. So, to my viewers, to my listeners, to my subscribers, it's a great privilege to have Mr. Piyush Gupta, the owner of Toy Fort. So, Piyush ji, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस podcast में, and thank you so much for being a part of it. Yeah, thank you. So, all right. Hi from my side to all your viewers. Thank you so much. And see, first of all, I think this particular podcast, it's going to be an engaging conversation. Plus, मुझे लगता है मैं खुद अपने बचपन में भी खो जाऊंगा, क्योंकि हम यहाँ पे टॉयज के बारे में चर्चा करने वाले हैं. Yeah. All right. So first of all, about Toy Fort, about this business. So सबसे पहले इसके roots हम जानना चाहेंगे, how it all started, और over to you, about your prior background. See, like the toy, my family, toys are family business. So, Okay. like my father, my grandfather is in toys business from last 70 years. 70 years, okay. Yeah. So, Toy Fort came into existence in the year 2000. My father started a new venture. So, it's a like big toy store spanning 2 floors in Kamla Nagar. So, बहुत मजा आता है टॉयज बेचने में, बच्चे आते हैं तो ठीक है. Like my Chacha ji is also into manufacturing of soft toys, the soft toy which you are seeing in the video. Yes, I can see that. Their unit as well. So whole family is into toys. तो मतलब जैसे कह सकते हैं कि आप काफी लंबे समय से आपके, if I considering your family, आप टॉयज के बिजनेस में थे. आपने के हिसाब से साल 2000 में इसको एक नाम दे दिया वेंचर का, टॉय फोर्ट, if I'm not wrong. Yeah. So it's basically a new store. Like the store in which my father used to sit, he left that store to my other Chacha ji, and he started his new venture. It's a like big store in Kamla Nagar, and the name is Whole India nowadays. Everyone knows about Toy Fort. We have like हमारे पास एक newborn से लेकर के, ठीक है, even for an adult like me, we have got everything in our store. Even we have toys for our like people aged like grandfather, grandmother. There's a lot of board games for them as well. So it's a complete everything under one roof. Okay. फैमिली बिजनेस काफी लंबे अरसे से रहा है आपका टॉयज में. Yeah. अब जैसे आपने फर्दर बताया कि हर वैरायटी, एज, इवन फॉर आपने ये बताया फॉर सीनियर्स, हाउ कम, लाइक क्या आप थोड़ा एलैबोरेट कर सकते हैं इस चीज को? For seniors. Yes. Like हमारे पास ना टॉय फूड पे क्या है, बहुत सारी एडल्ट्स के लिए भी बोर्ड गेम्स होती हैं, पजल्स होती हैं. वी हैव गॉट लेगो ब्लॉक्स जिसके अंदर एडल्ट्स बहुत एंजॉय करते हैं. लाइक सारे दिन घर में बैठे रहते हैं वो लोग, या कुछ उनको टाइम पास करने के लिए नहीं होता. सो वी हैव गॉट लूडो विच इज अ फेवरेट गेम फॉर एडल्ट्स. ऑफ कोर्स. ठीक है, उसमें बहुत मजा आता है. वी हैव गॉट चेस, वी हैव गॉट पजल्स लाइक 1000 pieces puzzles, 2000 pieces puzzles. So it's very interactive for them. They can spend a lot of time in that. ठीक है, उससे लगे रहते हैं वो लोग, मजा आता है उनको. ओके. सो कमिंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, कि अभी जैसे आपने बताया 2000 में टॉय फोर्ट के नाम से यू रीब्रांडेड, और आपने अगेन मतलब उसको एक तरीके से शुरू किया इन टर्म्स ऑफ अ फिजिकल स्टोर, एक अलग नाम से. ठीक है. व्हाट अबाउट दिस वेबसाइट, जो डोमेन नेम जो आपका toyfort.in, toyfort.in जो है, वो कब से एग्जिस्टेंस में आया? फिर toyfort.in हम लोगों का पिछले 12 साल से डोमेन नेम है, बट हमने एग्रेसिवली उसके ऊपर पिछले पोस्ट कोविड वी स्टार्टेड डूइंग, बिकॉज कोविड के बाद क्या, बहुत सारे लोग अब ऑनलाइन बाय करने लग गए. लोग स्टोर्स पे आना, कोविड के टाइम पे लोग फिजिकली गए नहीं. एवरीवन वांटेड टू बाय थिंग्स एट देयर होम ओनली, दे वांट डिलीवरीज एट देयर होम.
So we started doing online at two mediums, like we are present on Instagram as well. वहाँ से हमारे को बहुत ऑर्डर्स आते हैं. We get पैन इंडिया से अब लोग हमारे को ऑर्डर भेजते हैं. हम व्हाट्सएप पे हैं, जिस पे भी लोग व्हाट्सएप के थ्रू भी हमसे लोग बाइंग करते हैं. toyfood.in पे भी लोग बाय करते हैं. बिकॉज कई बार क्या होता है, इंस्टाग्राम पे लोगों को ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं, वेबसाइट पे लोगों को लगता है थोड़ा सेफ है, वहाँ पे लोग जाके बाय कर सकते हैं इजीली, वो ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं, तो लोगों को हैसल नहीं रहता किसी भी चीज़ का. प्लस वी ऑल्सो गिव सेम डे डिलीवरी इन दिल्ली एनसीआर, जो लोगों के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है. ऑफ कोर्स. सो मे आई नो इंस्टाग्राम पे जैसे ऑफ कोर्स अगर आपको इंस्टाग्राम से इंक्वायरीज आ रही है तो आप किसी तरह का कंटेंट भी डालते होंगे. एक तो हो गया कि तो वो आप थोड़ा उसको और फर्दर ब्रीफ कर सकते हैं. इंस्टाग्राम में आप क्या करते हैं? इंस्टाग्राम पे हम लोग के नॉर्मली वी स्टार्टेड डूइंग वीडियोस अराउंड 8 months बैक. आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके देखोगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, जिसके अंदर हम जो भी लेटेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं टॉय फूड के ऊपर आते हैं, हमारे पास लॉन्च होते हैं, उनका हम लोग ओपन करके उनका वीडियो शूट करके डालते हैं, जिससे कि लोगों को पता चल जाए कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट है क्या. बिकॉज अगर आपके लोगों को सिर्फ पिक्चर्स डाल दोगे तो लोगों को इनसाइड क्वालिटी नहीं पता चलता. नहीं पता वीडियो अगर आप पूरा आप डालोगे, प्रोडक्ट दिखाओगे, उसकी स्पेशलिटीज बताओगे, तो लोगों को बहुत इजी रहता है बाय करने में. तो जो भी न्यू लॉन्चेस हमारे पास जिसमें हमें ट्रस्ट रहता है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हमें इसको वीडियो पे डालना चाहिए, इससे लोगों को पता चले कि क्या नया आ रहा है मार्केट में. बिकॉज फिजिकल स्टोर पे तो चलो लोग स्टोर पे आके देख लेंगे, जो लोग सिर्फ ऑनलाइन बाय कर रहे हैं उनको पता ही नहीं चलेगा जब तक हम वीडियोस नहीं डालेंगे हम लोग. सो दैट्स हाउ वी डू. Yeah, sorry to interrupt. Yeah, so आपने एक प्रोडक्ट के बारे में have you covered all the products that are on your website? Not in. We cannot cover all the products because video shoot करना it's not honestly very not easy task. बहुत हमारे पास टॉय फूड के ऊपर more than 10,000 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास. ठीक है. सो ग्रेजुअली जो भी हमारे पास न्यू लॉन्चेस होते हैं या कुछ नए ब्रांड्स लॉन्च हो रहे हैं हमारे पास, तो वो ब्रांड्स के बारे में लोगों को अवेयर कराते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयर कराते हैं हम लोग. नो स्पेसिफिकली ऑफ कोर्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बट हाँ मतलब होता है कि आप एक कैटेगरी को कवर करके जैसे आप ये ट्राई करते हैं. रिसेंटली हम लोगों ने पिछले 3-4 मंथ से हम लोगों ने जो बच्चों के बैटरी पे राइड ऑन आते हैं, हमने बहुत सारे राइड ऑन डाले और बाय गॉड ग्रेस हम लोग को इतना अमेजिंग रिस्पॉन्स आया पैन इंडिया से. लोग इतने ऑर्डर्स हम लोग को भेजते हैं कि वी हैव सोल्ड अराउंड मोर देन 500 राइड ऑन इन जस्ट 3 months. परफेक्ट. मतलब वी कुडंट इमेजिन कि हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा और हम इतने राइड ऑन्स बेच पाएंगे हम लोग. और वी सेल दीज राइड ऑन्स एट वेरी लो प्राइस, बिकॉज हमारा मोटो क्या है कि बच्चों को कम से कम प्राइस में, पेरेंट्स मतलब जो लोग बेसिकली पेरेंट्स को लगता है मार्केट में जाएंगे महंगी मिलेगी चीज, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो हम क्वालिटी का भी एश्योरेंस देते हैं और साथ में प्राइस का भी एश्योरेंस देते हैं कि आपको रीजनेबल प्राइस बेस्ट क्वालिटी मिलेगा आपको टॉय फूड से. नाइस. सो मुझे एक आपसे बात पूछनी थी. जैसे अभी तक क्या होता था, जैसे टिपिकल एक ट्रेडिशनल बिजनेस, जैसे कहीं पे अगर कोई शॉप है, कोई स्टोर है या शोरूम है जहाँ पे लोग जाके खरीदते थे, डिजिटल कमिंग ऑन द टॉयज जब आपने शुरू किया था, और आपने ऑफ कोर्स इसका कोई एक बेंचमार्क सेट किया होगा, व्हाट यू कॉल द केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि हम जो प्रमोट करेंगे हम उसका इतना आउटपुट आएगा. आपने क्या टारगेट रखा था, और डिजिटल प्रमोशन करने से वेदर इट्स इंस्टाग्राम और एनी अदर मीडियम, मे बी आपने शायद पेड एड्स भी चलाए होंगे, आपको कितना रिजल्ट उससे मिला? व्हाट ट्रेमेंडस ग्रोथ और व्हाट चेंजेस यू हैव सीन आफ्टर गोइंग ऑन डिजिटल मीडियम्स? जैसा आपने जिक्र किया कोविड के बाद ज्यादा हुआ है, बट फिर भी इन जनरल मैं पूछना चाहूंगा. ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कोई टारगेट्स नहीं रखे. टारगेट्स रखने बिकॉज होता क्या है, जब आप कुछ नया स्टार्ट करते हो, ठीक है, हमें आइडिया ही नहीं होता उस चीज के बारे में कि क्या उसका रिस्पॉन्स आएगा, और हम उसका टारगेट सेट कर ले और हम वो नहीं अचीव कर पाए ना, तो वो हम उस काम को करेंगे ही नहीं, फिर हम छोड़ देंगे. हम It means like hit and trial है था ये, hit and trial. Yeah, it was a hit and trial. So जो हमारा हिट हो गया एकदम, तो अब मेरा मोटो ये रहता है कि यार टारगेट्स मत रखो, जस्ट कीप ऑन ट्राइंग एंड ट्राइंग, रिजल्ट्स विल कम ऑन ओन. जब आपको रिजल्ट्स अपने आप आने शुरू हो जाएंगे तो आपको उसमें और मजा आएगा. ठीक है, आप सिर्फ अपना काम करते जाओ, जस्ट कीप ऑन डूइंग योर वर्क, अपने आप आपको ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे. ओके. लेकिन आप जो भी कंटेंट बनाओ वो कंटेंट अच्छा होना चाहिए कि लोगों को पसंद आए. कंटेंट बनाने के लिए बनाना नहीं है सिर्फ. जो आप काम कर रहे हो उसको आपको फुल डिवोशन के साथ करना है. ठीक है, लाइक टॉयज इज आवर पैशन. हम पैशन है हमारा कि हमें बच्चों को टॉयज दे, मतलब बच्चे हमारे स्टोर पे आए तो खुश होके जाएं, उनको लगे कि यार यहाँ से बढ़िया टॉयज कहीं नहीं मिलते. राइट. पेरेंट्स को बोले यार टॉय फूड
से ही टॉयज लेने हैं हमारे को, और कहीं से नहीं लेना। और कहीं से नहीं खरीदने। इवन इनफैक्ट जो हमारे को पैन इंडिया से जो कस्टमर्स हमारे को ऑर्डर भेजते हैं, तो वो हमें मैसेजेस करके बोलते हैं मजा आ गया आपके यहाँ से हमें टॉयज मंगा करके। बिकॉज हम लोगों का ये रहता है पैकेजिंग, हम लोग की जो पैकेजिंग होती है दैट इज सुपर। 99.9% chances there will be no damage in the transit. So one further one I want to ask कि आप जैसे टॉय फूड का आपने जिक्र किया इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो, इज इट ओनली द वेबसाइट या आपने और भी कई मार्केट प्लेसेस पे अपने आप को लिस्ट किया हुआ, लाइक Amazon? हम लोग ईयर 2017 में वी स्टॉप्ड। अर्लियर वी यूज्ड टू सेल एट Amazon, Flipkart, Snapdeal, एवरीवेयर, बट वी स्टॉप डूइंग इट बिकॉज वहां पे क्या है, हम अपना नाम नहीं बना पा रहे हैं हम लोग। That's why we stopped marketplaces. We have our own marketplace. I really liked your particular style or your idea, your perception कि आप जैसे आपने कहा, मैं 2 पॉइंट जिक्र करना चाहूंगा। being from a marketing background, हमें क्या होता है, एजेंसी के साथ में पहले एसोसिएटेड रहा हूं, तो यहाँ हमेशा टारगेट्स की बात होती है। कोई भी जैसे ऑनलाइन कैंपेन्स वगैरह चलाते तो इसका अच्छा इतना टारगेट, हम इतना काम कर रहे थे, इतने क्लिक्स और कन्वर्जन, व्हाटएवर दिस टेक्निकल एंड ऑल। बट आपकी चीजें मुझे आपके केस में जो दिखने को मिल रहा है वो होता है कि जो पैशन है टुवर्ड्स टॉयज, यू आर लविंग योर प्रोडक्ट, आप उसके बारे में कंटेंट बना रहे हो, आप लोगों को उसके बारे में बता रहे हो, जानकारी दे रहे हो। This is something I liked. और further मैंने और भी स्टडी किया था आपकी पर्टिकुलर your Instagram. You have also started vlogs kind of. आप थोड़ा उसको elaborate कर सकते हैं हल्का सा? Yeah, so basically idea about vlogs is कि हम toys business में पिछले 70 years से हैं, मेरे को toy business में 22 years हो गए। So now हम चाहते हैं कि और भी लोग टॉय इंडस्ट्री में आए। आपने मतलब सुना ही होगा, आई डोंट नो, कि ईयर 2000, आई थिंक 31 दिसंबर 2021 करेक्ट, BIS टॉयज के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है, तो आइडिया वाज अबाउट, नरेंद्र मोदी जी का आइडिया है कि इंडिया के अंदर एक टॉयज का हब बने, यहीं पे टॉयज बने, बाहर से टॉयज ना आए। यस, तो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। तो हमारा बेसिकली मोटिव है कि लोगों को एनकरेज करना कि आप इंडिया के अंदर फैक्ट्रीज लगाओ टॉयज की, यहाँ पे टॉयज बनाओ। तो हम वो उसके अंदर प्रमोट करना चाहते हैं। प्लस जो फैक्ट्रीज जो लगा रहे हैं लोग, ये जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अब उनको स्केल भी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ वो इंडिया में ही माल बेचेंगे, यहाँ से वो लोग एक्सपोर्ट भी करें। yes. तो हम उसके लिए भी लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। दिस इज काइंड ऑफ कि वी आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी। जो हम लोगों ने टॉयज से कमाया, ठीक है, ये टॉयज से जो नाम बनाया हम लोगों ने, हम टॉयज बिजनेस के लिए कुछ अब करना चाहते हैं। सो दैट्स हाउ ब्लॉग का हम लोगों ने स्टार्ट किया हम लोगों ने। Can you further elaborate about this Make in India? आप कैसे, आप उसको और कैसे पार्ट रहे हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ जैसे आपने टॉयज का जिक्र किया मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में, जैसे लोग इसको जैसे काइंड ऑफ एन इनिशिएटिव बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी की, वो जो ऑफ कोर्स जैसा आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि बाहर ज्यादा, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, लाइक फन स्कूल और भी ऐसी कई है। जैसे मुझे बचपन में GI जो का बहुत शौक था, ठीक है, जैसे वो बैटमैन और स्पाइडरमैन उस टाइम पे मैं आई कैन रिकलेक्ट, तो वो ज्यादातर जो मैं रिकलेक्ट कर सकता हूँ, हमेशा वहां पे मेड इन चाइना ही लिखा होता था या बाहर से आता था। अब ये अभी इस गवर्नमेंट के जरिए इनिशिएटिव लिया गया है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो। आप उसमें कैसे कैसे और इन्वॉल्व हैं और कैसे कैसे आप उसमें एक्टिव रहते हैं, थोड़ा उसको आप इलैबोरेट कर सकते हैं? और आई टेल यू, लाइक प्रायर टू दिस BIS, ठीक है, ओनली आई थिंक 5 to 6% टॉयज वर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ठीक है, now it's been vice versa. Now the 95% toys are made in India. ठीक है, only 4 to 5% toys, I think that is also bigger figure, जो बाहर से भी आ रहे हैं। ठीक है, that is also BIS कि जो भी कंपनीज बाहर से टॉयज इंपोर्ट करना चाहती हैं, इंडिया में लाना चाहती हैं, उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, सर्टिफिकेट इशू होता है। दैट इज एश्योरेंस फॉर द क्वालिटी, बिकॉज हमारे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे जो टॉयज जब खेलते हैं तो उनको नुकसान ना हो, बच्चों को कुछ भी प्लास्टिक हार्म ना करे उनको। So that's basically idea about the BIS, Bureau of Indian Standards. Okay. ठीक है, तो अब हम लोग अपने टॉय स्टोर के ऊपर भी हम लोग मैक्सिमम अब टॉयज मेड इन इंडिया सेल करते हैं, BIS वाले। ठीक है, या फिर जो कंपनीज बाहर से इंपोर्ट कर रही हैं, दैट आल्सो हैज टू बी BIS। ठीक है, सो नाउ वी स्टॉप कीपिंग नॉन BIS टॉयज, वी प्रमोट ओनली BIS टॉयज। आप हमारी रील्स पे भी जाके देखोगे, इंस्टा पे भी जाके देखोगे, ऑल BIS। सो क्वालिटी इज द फर्स्ट थिंग विच वी मेक श्योर कि कोई भी टॉय अगर टॉय फूड पे सेल हो रहा है तो उसका क्वालिटी एकदम अमेजिंग होना चाहिए। बट समहाउ इवन इन इंडिया कुछ टॉयज भी ऐसे होते हैं कि हम मेड इन इंडिया टॉयज के अंदर भी हम लोग जो अपने टॉय स्टोर के ऊपर रखते हैं, दैट आल्सो हैज टू बी टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स।
डेफिनेटली। सो समटाइम्स वी गो टू द, हम लोग मैन्युफैक्चरर्स के पास जाके उनकी फैक्ट्रीज विजिट करते हैं कि आप लोग कैसे बना रहे हो, क्या आपकी क्वालिटी है। अगर क्वालिटी अच्छी लगती है तभी हम उसको टॉय फूड पे मंगाते हैं, हम लोग उनको सेल करते हैं हम लोग। पहले आप मतलब कुछ विजिट करते हो और साथ में मतलब उसको या इवैल्यूएट करो। रिसेंटली रिसेंटली ब्लॉगिंग के पीछे भी हमारा एक ये मोटिव भी है कि हम लोग फैक्ट्रीज में जाके हम उनका क्वालिटी भी चेक कर पाएं, कि अगर हम उनके कोई ब्रांड्स को हम लोग टॉय फूड पे अपने लॉन्च करना चाहते हैं तो हम उनको ब्रांड को भी प्रमोट कर पाएं, उनकी क्वालिटी भी देख पाएं और फिर उनको टॉय फूड पे ऑर्डर करके मंगा भी पाएं हम लोग। ओके। टॉयज के अलावा और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे हम लोग गेमिंग, सारे कंसोल्स, प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स वगैरह हम लोग टॉय फूड पे रखते हैं। प्लस बैक टू स्कूल का एक बहुत बड़ा सीजन होता है अभी। अब रिसेंटली जब स्कूल्स ओपन होते हैं, स्कूल बैग्स, बॉटल्स, लंच बॉक्सेस, सो दैट वी कीप एवरीथिंग। प्लस न्यूबॉर्न एसेंशियल्स जो होते हैं बच्चों के, सारे लोशंस, टॉयलेटरीज, एवरीथिंग वी कीप एट टॉय फूड। प्रैम्स, स्ट्रॉलर्स, वॉकर्स, ये मतलब यू नेम इट एंड वी हैव इट एट टॉय फूड एंड इवन toyfood.in। स्कूल बैग्स, और वो भी मैंने देखा, स्कूल बैग्स या और या जो क्रिकेट का जो। स्कूल बैग्स का बहुत कलेक्शन होता है। मतलब वी कीप ओनली द टॉप क्वालिटी ब्रांड्स, वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी एंड द ब्रांड्स लाइक स्मेगल्स, वाइल्डक्राफ्ट, you name the brand and we have it। Okay. Nee, there is a diverse range on your particular website, what I checked. And well, one more thing, एक बहुत एक इंटरेस्टिंग सवाल पहले से मेरे जहन में था, बहुत पहले से मैंने सोचा हुआ था कि of course when it comes to toys, अब ये कहा जा सकता है कि टॉयज का जो क्रेज होता है, जो डिमांड होती है, वो जनरेशन के हिसाब से, समय के हिसाब से बदलती है। अब जैसे एक जमाना था, जैसे अगर मैं खुद अपना एग्जांपल लूं, आई बिलोंग टू, आई कैन कॉल माई सेल्फ अ 90s, मतलब 90s में बॉर्न हुए, और हम अपने आप को खुद एक हाइब्रिड स्टेट से हैं। मतलब हम कैसेट सीडी वाले जमाने में पैदा हुए, उसके बाद इंटरनेट आया और अब तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं। तो जमाने के साथ बच्चों की डिमांड और उनकी जो चाहत होती है खिलौने की तरफ, ये बदलती रहती है। अभी जैसे हम इंटरनेट एज में हैं, एंड इन 2020 में इसको स्पेसिफिकली बोलूंगा, द एआई एज हैज स्टार्टेड 2020 में से लेके अब जैसे एआई टूल्स वगैरह लोग यूज करते हैं अलग अलग चीजों के लिए, इसके भी शायद टॉयज आने वाले हैं, गॉड नोज अबाउट इट। इसका रिसर्च आप कैसे करते हैं, किस तरह से इसके बारे में जो होता है ना कंटिन्यूसली, आपको एक तो होते हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग टॉयज हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं मार्केट में, एक होता है कि हाँ आने वाले समय में लोग किस तरह के टॉयज खरीदेंगे, तो बीच बीच में आपको रिसर्च भी करनी पड़ती होगी। फॉर दैट जनरली उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एग्जीबिशंस होती हैं सब जगह पे, लाइक देयर इज अ हांगकांग फेयर, देयर इज अ न्यूरनबर्ग फेयर, वहाँ पे जो भी लाइक जनवरी के अंदर फेयर स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सो वी विजिट दीज फेयर्स कि आने वाले 1 साल में, 1.5 साल में क्या नया टॉय मार्केट के अंदर आ रहा है। वहाँ पे सब कंपनीज अपनी इनोवेशन दिखाती हैं, ये अपने नेक्स्ट 1 ईयर के सारे लॉन्चेस वहाँ पे लेके आती हैं कि उन लोगों ने ये नया बनाया मार्केट के लिए। तो वी विजिट दीज फेयर्स। वहाँ पे आपको, जैसे इंडिया के अंदर भी फेयर लगता है, बहुत फेयर लगे टॉयज के, जहाँ पे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आके अपनी नई नई इनोवेशन दिखाते हैं, नए टॉयज दिखाते हैं, अपने डिस्प्ले करते हैं। तो हम लोग वहाँ पे जाके सब देखते हैं, वहाँ से हमें भी आइडिया लगता है कि यार ये मार्केट में नया आने वाला है, ये लॉन्च होने वाला है, तो हम अपने आप से उसको प्रिपेयर करते हैं। तो एक चीज और मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा, नाउडेज व्हाट हैपन कि ये एआई का जमाना है या टेक्नोलॉजी का जमाना है, बहुत सारे बच्चे अब मोबाइल के पीछे लगे रहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों की कोशिश रहती है कि पेरेंट्स जो हमारे टॉय फूड के ऊपर आते हैं, हम उनको बताएं, उनको गाइड भी करें साथ साथ कि आप बच्चों के लिए ये गेम्स लो, आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट करो। और आज के टाइम में पेरेंट्स को भी ये सब काम करना चाहिए कि बच्चों के साथ बैठें, टाइम स्पेंड करें, बच्चों को गेम्स खिलाएं, बोर्ड गेम्स खिलाएं, बच्चों को मोबाइल से दूर करें। ये आपने बहुत बिल्कुल सही एक पॉइंट कहा, क्योंकि होता है ना, जैसे इंटरनेट का वो चस्का लग गया था, चस्का लग गया इंटरनेट का, तो फिर वो फिर नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम से दूर नहीं है फिर बच्चे। और मैं मतलब इसमें इनडायरेक्ट बात बोलूंगा कि जो चीज आपको कॉलेज में आके पता लगती है वही आपको स्कूल से पता है, मतलब एग्जैक्टली मैं ज्यादा इस पे नहीं चर्चा करना चाहूंगा, बट आपने बिल्कुल सही पॉइंट कहा कि ये होता है ना कि हमें पता है पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, पेरेंट्स को पता है पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया भर की खबर पता है, लेकिन हमारे घर में क्या हो रहा है वो नहीं पता। और उन बच्चों को एंगेज करने के लिए टॉयज का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वहां से होता है ना, इन टर्म्स ऑफ इन द नेसेंट स्टेज, जब बचपन होता है, क्रिएटिविटी इमेजिनेशन के लिए वो एक टॉयज का बहुत बड़ा एक रोल होता है। टॉय इज अ नेसेसिटी। सो एनीवेज,
coming further on this, any future plans you want to share with me यहाँ पे जो इस particular portal पे? मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा लाइक टॉय फूड पे विच इज ऑल्सो आर स्पेशलिटी आपके इस क्वेश्चन के ऊपर रिमार्क करने से पहले कि टॉय फूड के ऊपर जो आजकल बर्थडे पार्टीज होती हैं, ठीक है, हाँ। बच्चों के बर्थडे पार्टीज होती हैं, बच्चों को क्रेज होता है कि हमें रिटर्न गिफ्ट देने अपने फ्रेंड्स को, तो टॉय फूड के ऊपर रिटर्न गिफ्ट का एक बहुत बड़ा रेंज आपको मिलेगा. वी हैव गॉट ह्यूज कलेक्शन ऑफ रिटर्न गिफ्ट्स, अमेजिंग रिटर्न गिफ्ट्स. हम अपने इंस्टा रील के ऊपर भी लोगों को बहुत दिखाते हैं कि ये इस एज ग्रुप के लिए इस रेंज में आपको रिटर्न गिफ्ट मिल जाएंगे. वी हैव गॉट लाइक फॉर एवरी बजट, फॉर एवरी एज एंड फॉर एवरी जेंडर. मतलब अगर आप कुछ एडल्ट्स की पार्टीज में भी कुछ देना चाहते हो तो वो भी हमारे पास मिलेगा. हमारे पास मतलब एक एवरी एज, ऑल एजेस. ये भी तो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ना, जैसे घर पे बर्थडे पार्टीज प्लान करते हैं तो वहाँ पे एक जो था ना रिटर्न गिफ्ट एक बहुत बड़ा लोगों का ना एक चैलेंज होता है कि यार रिटर्न गिफ्ट क्या दें लोग. सो वी हेल्प पेरेंट्स फाइनलाइजिंग द रिटर्न गिफ्ट्स. मतलब पूरा पेरेंट्स को मतलब उस मामले में एज ग्रुप के हिसाब से एजुकेट करते हो. yes and further and we also do customized packing also, like particular किसी का थीम है, कोई जंगल थीम है, कोई पोकेमॉन थीम है, तो हम उसके हिसाब से कोशिश करते हैं कि उनकी पैकिंग भी उस तरीके से हो सके, तो वो उनकी बर्थडे पार्टी को कॉम्प्लीमेंट करता है फिर वो. Okay, and one more thing I want to ask, मतलब मेरा being a digital entrepreneur and a voice artist specifically, apart from being a podcaster, is there any specific category जो आप ऐड कर सकते हो? मे बी ये मेरा एक सवाल भी है और मैं कह सकता हूँ एक सजेशन भी कह सकते हो उसको. काइंड ऑफ अ स्पेसिफिक कैटेगरी फॉर एनिम फैंस, जैसे फैंस. यस, क्योंकि बच्चों का बहुत क्रेज रहता है लाइक डोरेमोन. ये जो चीजें. So we have basically we have all these figures as well at the toy food, like Doraemon, Chota Bheem, Spider-Man. इसका हमारे पास बहुत बड़ा कैटेगरी है कि इसकी सब फिगरीन्स हमारे पास होती हैं जो भी मार्केट में अवेलेबल है, जो यहाँ पे लॉन्च हुई है. वी ट्राई टू कीप एवरीथिंग एट टॉय फूड, लाइक एवेंजर्स, ठीक है, सबका फैसिनेशन है. स्पाइडरमैन मेरा भी फैसिनेशन था बचपन में, तो इन सब के फिगर्स हमारे पास टॉय फूड पे होते हैं. सब कैरेक्टर्स के टॉयज भी होते हैं हमारे पास, एवरीथिंग. मतलब आप सोचो एक न्यूबॉर्न से लेके इवन फॉर लाइक एडल्ट पर्सन, वी हैव गॉट एवरीथिंग. न्यूबॉर्न के लिए वी हैव गॉट प्रैम्स, वी हैव गॉट. इसमें भी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, पहले हमारे इंडिया में हाई एंड ब्रांड्स नहीं मिलते थे, ठीक है. सो वी हैव गॉट ऑल हाई एंड ब्रांड्स एट टॉय फूड, चोए, नूना, न्यूबॉर्न्स के लिए. तो किसी पेरेंट को कहीं जाने की जरूरत नहीं है. अगर आपके बेबी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो सिंपल टॉय फूड पे आओ, यू नेम द ब्रांड जो भी आपके मन में हो, जो बिकॉज सब लोग आजकल इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, सबको होता है कि हमें अपने बेबी के लिए लेना है, अपने बेबी के लिए ब्रांड लेना है, ये स्टॉलर लेना है. सो यू नेम इट एंड वी हैव इट, टॉय फूड. Okay. Now, why specifically I talked about anime? Because I have seen a huge, demand, not going towards that voicing side, but so for example, Ben 10, if you know the character, Ben 10 है. Ben 10, sure. तो Ben 10 की जो हिंदी आवाज है वो I have a different podcast, उसमें वो आ चुके हैं, the official Hindi voice of Ben 10 and a lot of characters like Shin Chan. तो लोग उनका इतना ज्यादा क्रेज है, तो लोग है ना इससे रिलेटेड of t-shirts और वो खिलौने और खरीदना चाहते हैं. So that's why I specifically asked this question. Yes. So, we have got that range as well at Toy Food. Okay, nice. So well, it was great to interact with you on this particular topic. मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे लिए ना थोड़ी जैसे चाइल्डहुड मेमोरीज भी होती है, क्योंकि मैं जिस टाइम पर मेरे केस में मुझे सबसे ज्यादा GI जोस का क्रेज था उस टाइम पे, जैसे मैंने आपको जिक्र किया. Fascination for I think every 90s kids GI जोस. आजकल ये जो आपने जैसे जिक्र किया कि आप अलग अलग एग्जीबिशंस में जाते हैं, यू स्टडी एंड आल्सो दैट इज अ गुड पॉइंट अबाउट bringing more and more innovation to your business. Yeah, definitely. So one more thing I also like to highlight through this podcast, like कई बारी क्या है हमारे इंस्टाग्राम पे ना बहुत सारी क्वेरीज आती हैं जो लाइक बच्चे बाहर रहते हैं, उनके पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं, वो उनके लिए कुछ भेजना चाहते हैं, या मान लो कोई बुआ बाहर रहती है, वो अपने भांजे को भेजना चाहती है, कोई मामा बाहर रहते हैं, वो अपने भतीजे को भेजना चाहते हैं. सो वी डू गिव दैट फैसिलिटी आल्सो.
आप टॉय फूड के हमारे नंबर्स हैं, आप उस पर कांटेक्ट करते हैं लोग, और हमारे को यहाँ पे भेज के हमें अपने भतीजे को भेजना है, भांजे को भेजना है, अपने मदर फादर को भेजना है। बिकॉज यहाँ पे कई बार क्या होता है, जैसे मान लो मैं बाहर रह रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स यहाँ पे ओल्ड एज पेरेंट्स हैं, उनको टाइम स्पेंड करने के लिए उनको कुछ भेजना है। सो वी डू एवरीथिंग if you ओके, want to send any special note. So like one stop shop. मतलब सारी चीजें एक ही रूफ के अंदर, एक ही Yes, बैनर के अंदर आपको yes, सारा जो भी है, वेदर definitely. इट्स ऑफलाइन And एंड ऑनलाइन। also, yes, one more thing, like BIS आने के बाद हमारे भी मन में, like being a retail store, कि कुछ थोड़ा सा डर था कि यार टॉयज मिलने बंद हो जाएंगे, नए नए टॉयज नहीं आएंगे, यहाँ बनने में बहुत टाइम लगेगा फैक्ट्रीज में नए टॉयज। ऐसा नहीं है। लोगों ने यहाँ पे मैन्युफैक्चर इतना जल्दी इनोवेशन किया है, इतना वैरायटी यहाँ पे अब टॉयज का अवेलेबल है, BIS वाले हाई क्वालिटी टॉयज का। हमें बाहर से टॉयज की जरूरत ही नहीं है। मतलब इंडिया, मेक इन हम इंडिया इज लाइक ओके। मेक इन इंडिया इज लाइक सुपर्ब इनिशिएटिव बाय द Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. It's amazing. It has done wonders to toy industry, and our sales are growing year on year. 10 to नाइस, 15% growth we are having with Make in India toys. ग्रेट टू नो। वेल यू नो इट रियली इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट द, मतलब हम ऑफ कोर्स पता काफी चीजें होती है, जैसे यू नो बिग टॉयज बिग स्पेसिफिक कैटेगरी, बट जो आपने जैसे BIS का जिक्र किया अबाउट द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, और बहुत सारी चीजें आप आज पता चली। सो एनीवेज इट वाज ग्रेट टू हैव यू ऑन दिस शो, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत यू नो insightful conversation about toys, about a lot of Yeah, aspects, about Make in India, yeah. about the innovative ideas, like आप किस तरह से research करते हैं, क्या आप you know how you're making good use of Instagram and all the digital mediums यस, to create बिकॉज आज awareness. के टाइम में ना डिजिटल अगर आपकी प्रेजेंस नहीं है, ठीक है, सो आप सरवाइव ही नहीं कर पाओगे। इट्स अ लाइक हार्ड ट्रुथ। Certainly, सो यू yes, हैव टू बी इनोवेटिव। मतलब yes, आज टाइम हम ये नहीं सोच सकते कि कस्टमर हमारे पास अपने आप आएगा, वो जमाना चला गया। कस्टमर के पास आपको जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा, डिजिटल मीडियम्स पे जाना पड़ेगा, आपको फिजिकल स्टोर पे भी आपको रहना पड़ेगा इफ यू कैन मेंटेन इट। बिकॉज आज के yes, टाइम में बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं फिजिकल, और प्लस मार्केट प्लेसेस से कंपटीशन करने के लिए भी आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। true, बिकॉज ये कि आज के टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज है कि मार्केट प्लेसेस पे इतनी डीप डिस्काउंटिंग चलती है कि हम लोग उसको कई बार मीट नहीं कर पाते हैं हम लोग। तो आप कस्टमर को कैसे कन्विंस करोगे आप कि आप कस्टमर प्राइस ज्यादा देके भी मेरे से क्यों खरीदे? यू हैव टू हैव दैट स्किल्स। right, right. तो आपको इस मामले में यू हैव टू कीप अपडेटिंग योरसेल्फ, यू हैव टू बी इनोवेटिव एवरी डे। नई नई चीजों को यू नो जैसे आपने कहा हिट एंड ट्रायल एक्सप्लोर या करना, और द बेस्ट पार्ट ऑफ कोर्स यू आर पैशनेट अबाउट दिस, तो आप यू नो इसके बारे में और अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, और यस, जिसके जरिए ऑफ कोर्स इट्स लाइक अ लीड मैग्नेट आल्सो, मतलब थोड़ा हम टेक्निकल वे से देखें, लोग उसी के जरिए लोगों को पता लगता है, तो लोग और यू नो आतुर होते हैं यार खरीदने के लिए, या उस मार्केट प्लेस को या उस चीज को विजिट करने के लिए। यस, ट्रू। मतलब कस्टमर मेरे पास आ रहा है तो वो मेरे पास पैसे ज्यादा क्यों दे, भले ही उसको मार्केट प्लेस में चीज सस्ती मिल रही है। आपको ये निश डेवलप करना पड़ेगा आपको। बच्चे यस, जो आपके पास आ रहे हैं, बच्चे जाके बोले यार मुझे मम्मा को बोले कि टॉय लेना है तो यहीं से लेना है, वो आपको बच्चों को कैसे रिपीट कस्टमर बनाना है अपना। बिकॉज बच्चे ने अगर एक बार ये बोल दिया कि मुझे टॉय फूड से लेना है, तो पेरेंट्स कहीं और जाएंगे ही नहीं। बच्चों को राइट, आपको ऐसा तैयार करना है कि वो टॉय फूड पे ही जाएं। राइट। ये हमारा मोटिव होता है। दैट्स व्हाई वी से एवरी स्माइल काउंट्स। Every smile counts, yeah. Matches well with the tagline, and 100% you are following it. Right. या, So I hope you had a great time in this podcast, great. and Yeah, definitely. Like, it was really great talking to you. same here. And again, I would like to say this, like of course, this being my podcast, मेरा एक पहली बार ऐसा एक interaction था, एक ऐसे मतलब एक होता है ना बहुत ही यूनिक चीज। ऑफ कोर्स आई हैड इंटरेक्शन विद इन्फ्लुएंसर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, बट ये मुझे कह सकता हूँ पहली बार मैंने यूनिक तरीका लगा एक बात करने का, अबाउट डिफरेंट इतनी चीजें जानने को मिली। So it is great to have you, and I wish you all the best Same for here. all your future Thanks a endeavors, for lot. everything. Thank you. Thank you.